ذرا رک کر سوچئے، کیا آپ نے کبھی تصور کیا ہے کہ جب انسان کی آنکھ اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے بند ہوتی ہے اور اسی پل عالم برزخ میں کھلتی ہے تو سب سے پہلا منظر کیسے ہوتا ہے؟ عالم برزخ یعنی وہ دنیا جہاں انسان کی روح موت کے بعد قیامت تک ٹھہرتی ہے۔ سوچئے، ایک ایسا شخص جو دنیا میں بے شمار دولت کا مالک تھا، آج وہ ایک ایسے میدان میں کھڑا ہے جہاں دور دور تک سناٹا ہے، نہ کوئی دیوار، نہ کوئی چھایا، اور نہ کوئی محل، اور نہ کوئی درخت۔ دوستو، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہاں ہماری اور آپ کی زمین بھی یوں ہی ویران پڑی ہو؟ آج ہم اس عظیم نعمت کی حقیقت جانیں گے جو 1400 سال پہلے 7ویں آسمان سے خاص ہمارے لیے بھیجی گئی تھی تاکہ ہماری جنت کی زمین کونی نہ رہ جائے۔ یہ کہانی ہے تیسرے کلمے کی۔ جامعہ ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ اس کلمے کی جڑیں زمین کی مٹی میں نہیں بلکہ سدرۃ المنتہا تک پھیلی ہوئی ہیں۔ سدرۃ المنتہا یعنی وہ بیری کا درخت جہاں کائنات کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ یہ واقعہ ہے شب معراج کی مقدس رات کا، جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جبریل امین کے ساتھ ایک کے بعد ایک 7 آسمانوں کی سیر کر رہے تھے۔ ہر آسمان پر نبیوں نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عزت اور محبت سے سواگت کیا، لیکن 7ویں آسمان پر ایک ملاقات خاص طور پر آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نظر اٹھائیں، یہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، آگے بڑھیے، ان سے ملاقات کیجیے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب 2 عظیم ہستیاں آمنے سامنے تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے حد ادب اور محبت سے اپنے بزرگ پیغمبر کو سلام پیش کیا۔ السلام علیکم یا ابتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر روحانیت بھری مسکان پھیل گئی۔ انہوں نے شفقت سے جواب دیا، وعلیکم السلام، مرحبا، آؤ میرے نیک بیٹے اور نیک نبی۔ جب یہ مقدس ملاقات مکمل ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے کے سفر کے لیے مڑے، اور ٹھیک اسی پل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا، اے محمد، ذرا ٹھہریے، آپ دنیا کی طرف لوٹ رہے ہیں، میری ایک امانت لیتے جائیں، اپنی امت سے میرا سلام کہیے گا۔ ذرا اس بات پر غور کیجئے، ہزاروں سال پہلے 7ویں آسمان پر اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی کی فکر کر رہے تھے تو وہ کوئی اور نہیں، وہ میں اور آپ تھے۔ سبحان اللہ، ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر کے ذریعے ہم تک سلام پہنچا رہا ہے، لیکن بات صرف سلام تک کی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنت کا ایک ایسا راز کھولنے والے تھے جسے سن کر دل کانپ اٹھتا ہے اور روح جاگ جاتی ہے۔ انہوں نے فرمایا، اے محمد، میری امت تک یہ پیغام پہنچا دینا، جنت کی مٹی بے حد خوشبودار ہے، وہاں کا پانی دنیا کے ہر میٹھے پانی سے کہیں زیادہ میٹھا ہے، لیکن یہاں ان کی آواز میں ٹھہراؤ آ گیا، وہاں کے میدان ابھی خالی ہیں، نہ وہاں درخت ہے نہ باغات، تو پھر جنت آباد کیسے ہوگی؟ پھر انہوں نے فرمایا، ان سے کہہ دینا جنت کو آباد کرنے والے بیج یہ الفاظ ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور پھر وہ بات جو دل میں اتر جائے تو زندگی بدل دے۔ جب تمہاری امت میں سے کوئی
इन अल्फाजों को पढ़ता है तो उसी वक्त जन्नत में उसके नाम का एक दरख्त लगा दिया जाता है। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो ये 4 अल्फाज बताए, ये कोई मामूली ज़िक्र नहीं, ये वो बीज है जो जन्नत के बंजर मैदान को हरे भरे बागों में बदल देते हैं। आइए इन अल्फाजों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सुब्हानल्लाह, सुब्हानल्लाह। यानी अल्लाह हर ऐब से पाक है, लेकिन सवाल ये है इस चीज़ से पाक है जब एक बंदा सुब्हानल्लाह कहता है तो वो दरअसल खुद से इकरार करता है, मैं गुनाहगार हूँ, बड़कार हूँ, मेरे गुनाहों को माफ फरमा। ये अल्फाज इंसान के दिल से बदगुमानी और शक की गंदगी धो डालते हैं। दूसरा अल्फाज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी तमाम तारीफ़ें, तमाम शुक्र सिर्फ अल्लाह के लिए हैं। ज़रा गौर कीजिए, जब इंसान को कामयाबी मिलती है तो दिल के किसी कोने में पैदा हो जाती है, ये मैंने किया। लेकिन जब वही इंसान कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो अपनी मैं को ज़मीन पर रख देता है और सारी कामयाबी अपने रब की तरफ लौटा देता है। ये अल्फाज इंसान को अजीज़ बनाते हैं। तीसरा अल्फाज ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ना पत्थर, ना इंसान, ना दौलत, ना ताकत। क्या तू ही इबादत के लायक है और तू ही सबका मालिक है। सिर्फ एक अल्लाह। ये कलमा इंसान को दुनिया की हर गुलामी से आज़ाद कर देता है। और चौथा अल्फाज अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है। जब तुम मुसीबत में हो, कर्ज में डूबे हो या बीमारी ने घेर लिया हो, तो अपनी उस बड़ी मुसीबत की आंखों में आंखें डालकर कहो अल्लाहु अकबर। अब मुसीबत तो बड़ी होगी, लेकिन मेरा अल्लाह तुझसे बड़ा है। सुभान अल्लाह। मतलब तो हम समझ गए, लेकिन असल परेशानी ये है कि हम इन अल्फाज को दिल से महसूस नहीं कर पाते। तो सवाल उठता है, मैं ज़िक्र करता हूँ, तस्बीह भी पढ़ता हूँ, लेकिन दिल का बोझ हल्का क्यों नहीं होता? रूह को प्यास क्यों लगती है? क्या मेरे पढ़ने में कोई कमी रह जाती है? जवाब मिला, बेटा तुम अल्फाज सिर्फ ज़ुबान से पढ़ रहे हो, उन्हें अपनी रूह का हिस्सा नहीं बना रहे। तो फिर मैं क्या करूं? फरमाया, अगली बार जब सुबहान अल्लाह कहो तो तसव्वुर करना कि तुम्हारे गुनाह झड़ रहे हैं और जन्नत के उस खाली मैदान में तुम्हारे नाम का एक सुनहरा दरख्त लग रहा है। और जब अल्हम्दुलिल्लाह कहो तो उन नेमतों को याद करना जो अल्लाह ने तुम्हें दी हैं। तुम्हारी आँखें, तुम्हारे सांसें और दिल से महसूस करना कि तुम कितने एहसानमंद हो। याद रखिए दोस्तों, बिना एहसास के पढ़ा गया ज़िक्र सिर्फ अल्फाज होता है, लेकिन एहसास के साथ पढ़ा गया ज़िक्र रूह को ज़िंदा कर देता है। कभी कभी ज़ुबान से निकला सिर्फ एक अल्फाज पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल देता है। अब तक हमने जन्नत के दरख्तों की बात की, लेकिन अब बात करते हैं तीसरे कलमे की। लेकिन तीसरे कलमे का जो आखिरी हिस्सा है, उसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना करार दिया है। ये वो अल्फाज है जो उस वक्त काम आते हैं जब इंसान हर तरफ से टूट चुका होता है, जब दिल के अंदर ये आवाज़ें गूंजने लगती हैं, लत्या मेरा सब कुछ खत्म हो गया, अब मेरा कर्जा भी नहीं उतरेगा,
मैं बर्बाद हो गया। बस निकलेगा, मेरा कोई मददगार नहीं, क्या कोई मेरी मदद करेगा? मैं अब थक गया हूं, अब सब्र करने की हिम्मत नहीं रही। जिस पल इंसान की अपनी ताकत और अपनी हिम्मत जवाब दे जाती है तो उसी पल वो अल्लाह की कुदरत का सहारा लेता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्या आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, या अल्लाह, ना तो मुझ में गुनाह से बचने की ताकत है और ना ही नेकी करने की हिम्मत। अगर कुछ अच्छा हो सकता है तो सिर्फ तेरी तौफीक है। ये वो लम्हा होता है जब शैतान पीछे हट जाता है। पीछे हटो, इसने हवाला दे दिया, इसने अपनी हार मान ली और अपने रब को पुकार लिया, या अल्लाह शाफी। अब इसे तोड़ना हमारे बस में नहीं। सुभान अल्लाह। हदीस में आता है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 99 बीमारियों की शिफा है और उन बीमारियों में सबसे हल्की बीमारी रंज, गम, डिप्रेशन और बेचैनी है। ये वो चाबी है जो बंद किस्मत के ताले खोल देती है। फिर एक दिन अचानक आंखें उठती हैं और इंसान हैरान होकर देखता है, ये क्या, ये बाहर कहाँ से आ गई? ये हरियाली, ये बागात, ये रोशनी, ये सब किसका है? आवाज़ आती है, ये सब तेरा है। जब तू दुनिया में मायूस था और तूने कहा सुभान अल्लाह, तो यहाँ तेरे नाम का एक दरख्त लगा। जब तूने शुक्र किया और कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तो यहाँ नेमतें बढ़ा दी गईं। जब तूने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुझे हर गुलामी से आज़ाद कर दिया गया। और जब तूने कहा अल्लाहु अकबर, तो तेरी हर परेशानी छोटी कर दी गई। तेरे रब ने तेरे उन अल्फाज को जो तू चलते फिरते, उठते बैठते कहता रहा, उन्हें जन्नत के हरे भरे बागों में बदल दिया। अल्लाहु अकबर। तो दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सलाम भी हम तक पहुंच गया और उनका पैगाम भी। अब फैसला हमारा है, क्या आप अपनी जन्नत की ज़मीन को यूं ही वीरान छोड़ देंगे या फिर आज इसी वक्त अपनी जन्नत में महल दरख्त लगाएंगे? आइए मेरे साथ पढ़िए और दिल से महसूस कीजिए कि 7वें आसमान के ऊपर आपके नाम का एक दरख्त लगाया जा रहा है। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सुभान अल्लाह। आइए अब सब मिलकर दुआ करें, या अल्लाह, हमारी ज़ुबानों को अपने ज़िक्र से तर कर दे। या अल्लाह, जब हम इस दुनिया से जाएं तो हमारी जन्नत वीरान ना हो, बल्कि वो तेरे ज़िक्र के बागों से महक रही हो। या अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल कर जो ला हौला के ज़रिए अपनी तमाम परेशानियां तेरे हवाले कर देते हैं। आमीन उम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर ये दुआ आपके दिल से निकली है तो कमेंट में दिल से आमीन लिखिए। क्या पता हम में से इसकी दुआ कबूल हो जाए। ऐसे ही कुरान और ज़िक्र की गहराइयाँ जानने के लिए हमारे चैनल MK रज़ा स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करें। प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।